we started today's topic. You all know today's topic is how to open up different sources of earning from your blog. So we have discussed that blogging has become more than a hobby thing, and people are taking it up as a full-time profession. And myself and many other bloggers, they are earning a good amount of money from blogging. So in blogging, there are different sources. You don't need to be dependent on a single source of earning. There are various methods you can use to earn from your blog. So we will discuss them one by one. First method is Google AdSense. It is basically a program which is run by Google, and they pay you on a commission basis. If you are a publisher, you can create a blog and you can place ads on your blog or website, and Google will pay you a revenue share for your content. So basically, it works on the click basis. You need to provide a unique content to Google. You need to have organic ranking, and your website should be ranked in search engine Google, basically Google. So to rank your website, you need to provide a high quality content, and you should focus on learning SEO. SEO is the backbone of ranking, because you need. And one more thing, you need to have traffic from areas or basically locations provide high CPC, like USA and other countries. So there are different things that you need to know before getting approval for Google AdSense. First of all, you need to have the basic pages like About Us pages, Contact Us page, and Privacy Policy, and some other pages. And one more thing. Okay. I hope the screen is visible now. So to earn from Google AdSense, you need to have a good amount of traffic. Without traffic, your AdSense will not fetch you a good amount of money. तो अगर आप चाहते हैं कि आप एडसेंस से अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ट्रैफिक भी आपका टारगेटेड ट्रैफिक होना चाहिए और अच्छी कंट्री से होना चाहिए जहाँ पे सीपीसी बहुत अच्छा मिले, क्योंकि तभी आप जो है उसको कन्वर्ट कर पाएंगे एक कंसिस्टेंट एक पैसिव इनकम में। और उसके बाद जो मेथड, अच्छा नेक्स्ट मेथड पे मूव ऑन करने से पहले, इज देयर एनी क्वेरी और समथिंग दैट एनीवन वुड लाइक टू आस्क? Yes, Deepak. Hi, Deepak. हाँ जी, hello. Can you hear me? Am I audible? Yeah, I can hear you. Okay, Yeah, so you are Deepak, audible. my question is, what is all about blogging and what are different types of blogging? So I'm new to this field, and I like to know much about Okay. that. So that's why I'm asking this question. So right now I don't have any blogging website or anything regarding blogging, but So I want to basically, learn about that. I will say, yeah. तो बेसिकली ब्लॉग, पहले क्या होता था, ब्लॉग एक मीडियम था जिससे आप अपने ओपिनियन, अपने व्यूज जो है, अपने थॉट्स, जो भी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको शेयर कर सकते थे। अभी क्या है, ब्लॉगिंग एक प्रोफेशनल चीज बन गया है, और आप अपने ब्लॉग से आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, या जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको उसमें एक्सपर्टीज है। For example, if you belong to the medical industry or you belong to the health industry, so you can create a blog on health niche and you can share your knowledge over there. There are many doctors who are doing this. And if you are an engineer, basically a computer engineer, so you can create a blog on tech niche और उसमें अपनी नॉलेज को जो है शेयर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका ब्लॉग ग्रो करेगा, ट्रैफिक पे आएगा, सर्च इंजन वो रैंक करेगा, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप जो है इससे एक कंसिस्टेंट अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़ते हैं, बल्कि मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैंने ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करी है मार्केटिंग की, तो वो शुरू में बड़े जोश में आते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला है कि सिर्फ ये सोचकर मत करो कि आपको इससे जो है अर्निंग करनी है, या आपको इसमें शुरू में पेशेंस रखना पड़ेगा, और इसको आपको कंटेंट आप लिख रहे हो तो उसको उस चीज पर
सबसे पहली बात है नीश आपको बहुत अच्छे से चूज करनी है, क्योंकि अगर आपकी नीश ही गलत है ना तो आप लॉन्ग टर्म उसमें नहीं जा पाएंगे, है ना। बेसिकली ब्लॉग से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चुनते हैं, उसी पर आप जो है ना अपने ब्लॉग को बेसिकली फोकस करते हैं। और कोई क्वेरी आप पूछना चाहेंगे? आई होप योर आंसर आई हैव गिवन योर आंसर। यस, हाँ, बट इसमें मीडियम क्या क्या है हमारे पास ब्लॉगिंग के? हाँ, वही वही हम डिस्कस करें। सबसे पहला जो मैंने बताया वो है गूगल एडसेंस। उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। गूगल एडसेंस पे फॉर्म होता है जो कि आपको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास एक एक्टिव ब्लॉग होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव एन एक्टिव ब्लॉग फर्स्ट। After that, you need to create basic pages like about us, contact us, and privacy policy. मैं एक बता देता हूँ कौन कौन से पेजेस हैं। जैसे ये ब्लॉग है, इस पे आप देख सकते हो इस तरह से। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। हेलो, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस दीपक। राहुल, okay. So this is basically you can see this is also one of the ad placement which is provided by Google. और ऊपर अगर आप आते हैं तो हेडर में आप देखिए ये भी एक हॉरिजॉन्टल ऐड है, ये एक एड प्लेसमेंट है। और जो पेजेस में आपको बता रहा बेसिक पेजेस जो हैं, जैसे आउटर पेज हो गया जिसमें आप बताएंगे कि आपका ब्लॉग जो है वो किस नीश में है, या आप अपना इंट्रोडक्शन उसमें देंगे, है ना। और प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, कॉन्टेक्ट अस पेज है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ब्रांड आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो दे कैन यूज दिस कॉन्टेक्ट अस पेज टू कॉन्टेक्ट, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड यू कैन यूज फॉर अर्निंग फ्रॉम योर ब्लॉग। So the next method is affiliate marketing, and affiliate marketing basically affiliate is it is based on a commission basis. For example, there are different brands which are running their product or services. So if you are promoting their services or their product on your blog, you will be paid an amount for the same. For example, if I talk about Amazon, Amazon Associate is also an affiliate marketing program. So you just need to share their banners. You need to share their products and services. और शेयरिंग जो है आप बैनर के फॉर्म में कर सकते हैं या उनका लिंक शेयर कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपका ट्रैफिक होगा, अगर कोई उससे परचेज करता है, कोई भी विजिटर आता है, अगर वो उसको परचेज करता है और सेल जनरेट होती है तो उस सेल में से एक कुछ रेवेन्यू जो है कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। और ये मंथली बेसिस पे वर्क करता है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एफिलिएट दैट यू कैन यूज टू अर्न। सबसे पहला जो आ रहा है इसमें Amazon एसोसिएट है, वो आप यूज कर सकते हैं। और ब्लू होस्ट का आप एफिलिएट यूज कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है शेयर अ सेल, शायद आपको पता होगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो शेयर अ सेल ऑलरेडी यूज कर? शेयर अ सेल पे आप सभी एफिलिएट आपको जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल जाते हैं, और वहीं से आप यू कैन रजिस्टर ऑन दैट particular platform for different type of affiliates and choose the affiliates which suits your platform. For example, if you are in tech niche, you can choose the tech affiliates. अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर लिख रहे हैं तो आप होस्टिंग के एफिलिएट चूज कर सकते हैं। जैसे नेम चीप है, नेम चीप के आप एफिलिएट यूज कर सकते हैं, नेम चीप एफिलिएट या ब्लू होस्ट। यू नीड उसके लिए आपको यू नीड टू राइट अ रिव्यू अबाउट होस्टिंग। You need to write a detailed review about their hosting, and after that you can share the link to buy hosting from their from their official website. Affiliate marketing में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कोई पूछना चाहेगा? हेलो दीपक। दीपक, जस्ट रिक्वेस्ट, मुझे पता है मेरी वॉइस ठीक हो रही है। मैसेज में काफी लोगों ने क्वेरीज पूछी, इट्स रिक्वेस्ट कि आप उसे चेक करें और वहां पे रिप्लाई करें। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं अपना अनम्यूट ही म्यूट ही कर।
ओके, सो देयर इज वन क्वेरी, हाउ टू इंक्रीज ट्रैफिक। तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज। अब ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए सबसे मेन है कि ट्रैफिक कहाँ से आएगा। मेन क्या होता है, अगर हम एक वेबसाइट, जो जनरली सभी लोग करते हैं, एक ब्लॉग बनाया, बनाने के बाद उसको जो है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं या कुछ एक जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे डाल देते हैं, तो वो काइंड ऑफ इमेच्योरिटी होती है शुरू में सभी ब्लॉगर्स की तरह। लेकिन जो मेन सोर्स है, मतलब जो आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक देगा और जहाँ से आप कंसिस्टेंट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक सोर्स ही है, यानी गूगल सर्च बेसिकली। और गूगल सर्च में गूगल सर्च से ट्रैफिक लेने के लिए आपको अपने आर्टिकल को रैंक ही करना पड़ेगा। एंड फॉर रैंकिंग पर्पस यू नीड टू वर्क ओवर योर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको उसमें जो है कीवर्ड रिसर्च सबसे मेन होता है। कीवर्ड रिसर्च आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे गूगल की कीवर्ड प्लानर एक आता है, वो फ्री है, अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। और गूगल कीवर्ड प्लानर में बेसिकली वो तीन दिखाता है आपको ऑप्शन, लो, मीडियम और हाई डिफिकल्टी। डिफिकल्टी लेवल होता है। डिफिकल्टी लेवल यानी आपका कीवर्ड रैंक करना इजी है, डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब उसमें वो नंबर्स में स्पेसिफाई नहीं करता है, लो, मीडियम या हाई। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको एक कीवर्ड का टूल बताता हूँ। KW फाइंडर जो है सबसे बेस्ट कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। और अगर आप उसको कंप्लीट सिंगल इंडिविजुअल प्लान बाय नहीं कर सकते, तो आप जो है उसमें ग्रुप बाय भी बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको मंथली वो हार्डली 600 से 700 का आपको कॉस्ट पड़ता है। और उसके बाद आपको जो है, या कीवर्ड फाइंडर, आई सेड कीवर्ड फाइंडर, KW फाइंडर, सॉरी, KW फाइंडर। सो KW फाइंडर का आप यूज कर सकते हैं। एंड KW फाइंडर में बेसिकली आपको उन कीवर्ड से वर्क करना है जिनका वॉल्यूम है काफी हाई है और डिफिकल्टी लेवल जिनका कम है। शुरू में, फॉर एग्जांपल, वी हैव स्टार्टेड अ ब्लॉग, सो यू मस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स विद हैविंग कीवर्ड डिफिकल्टी नॉट मोर देन 20। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कीवर्ड फाइंड करना इज नॉट इजी नाउअडेज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉगर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स। तो आपको जो है एक लिस्ट बनानी है, एक एक्सेल शीट आप बना सकते हैं, जो भी टॉपिक आपके माइंड में आता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू राइट एन आर्टिकल ऑन टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स, तो इस पर्टिकुलर टर्म को आप सर्च कर सकते हैं KW फाइंडर में, and according to that it will show you the search result, basically the volume and keyword difficulty। और उसमें आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन इंडिया, CPC varies with the location। USA, if you talk about US, it will have different CPC, and if you talk about India, it will different CPC। So you need to focus on countries which are providing high CPC, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लिक्स तो आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, ब्लॉग्स पर आपके क्लिक आ रहे हैं, एड्स पे क्लिक हो रहे हैं, लेकिन CPC अच्छा नहीं है। जैसे मान लो आपको वीकली 200 क्लिक्स मिले, लेकिन CPC आपका बहुत ही कम है। इंडियन CPC की अगर बात करें ऑन एवरेज, मैं जनरल बता रहा हूँ, तो 0.04 से 0.8 डॉलर अगर आपको CPC मिल रहा है, तो आप उसमें अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ भी आप उसमें अर्न नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपका जो मेन लोकेशन है, मतलब आपका ट्रैफिक बेसिकली अगर US से आ रहा है, and you are fetching good traffic and your CPC is around $1.1 or something, तो यूएस में काफी कॉमन है। $1 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि देयर आर कीवर्ड्स व्हिच हैव वैल्यू ऑफ अराउंड $20, $25 और मोर। सो अगर आपको सोचो 100 से 150 क्लिक्स उसमें वीकली मिलते हैं, तो यू विल मेक अराउंड $100 इजीली विद इन 7 days। सो CPC आपको जानना बहुत जरूरी है। और बिना कीवर्ड रिसर्च करे मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। अभी वो टाइम नहीं है कि आपने कोई टॉपिक सोचा और उस पर आपने जो है बिना कीवर्ड रिसर्च करे, वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे हवा में तीर मारना, है ना। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है।
शुरू में इनिशियली आप अगर टूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री टूल जो है उनको यूज कर सकते हैं, फ्री टूल्स को। ठीक है, आई होप द आंसर टू द क्वेरी हैज बीन गिवन। कीवर्ड रिसर्च मुझे लगता है समझ आ गया है। एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च और basically traffic? ओके, सो थर्ड मेथड पे अब हम बढ़ जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हमने डिस्कस कर लिया है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा मेथड है, इसमें आप काफी अच्छा रेवेन्यू, जैसे wordpress.org जो है वो भी अपने एफिलिएट्स रन करते हैं। wordpress.com जो है वो भी अपने एफिलिएट्स करते हैं, तो आप wordpress.com एफिलिएट यूज कर सकते हैं और ब्लू होस्ट के एफिलिएट आप यूज करते हैं। शेयर अ सेल पर आप एक बार रजिस्टर, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। Yeah, we will do a different session on keyword research. We will do another webinar on that. Okay, so let's move on to another another method which we can use. So next method जो आ रहा है हमारा वो है sponsored post। अगर आपको लगता है कि एडसेंस से आप काफी वर्क कर लिया है आपने और एफिलिएट भी आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट एक मेथड है, वो आप यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली क्या होती है? दीज आर द पोस्ट व्हिच आर स्पॉन्सर्ड बाय डिफरेंट ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इनटू टेक and you are writing about cyber security and all, so different brands will reach out to you, like antivirus software companies and all. So they will reach out to you through email. Their representative will reach out to you and they will ask you to place a sponsored post on your blog and they will pay you a good amount of money for that. लेकिन उसके लिए आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है और डीए डोमेन अथॉरिटी होती है एक ब्लॉग की, तो डीए शुड बी, यू शुड हैव अ मिनिमम डीए ऑफ 20 होना चाहिए। 20 नहीं तो 15 तो मिनिमम डी होना चाहिए। बल्कि मैं एडवाइस करूंगा कि स्पॉन्सर पोस्ट आप तभी लें जब आपका डीए 20 से ऊपर पहुंच जाता है। You suggest keyword difficulty should be lower than 20 and what about its traffic? अच्छा, ट्रैफिक जो होना चाहिए, अगर उसका वॉल्यूम जो है 10,000 15,000, मतलब आपको वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा लेना है। काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे जिसमें वॉल्यूम काफी अच्छा होता है और आप उससे जो है अर्न कर सकते हैं। कि KW फाइंडर अगर आप बाय करेंगे ग्रुप बाय टूल फ्लिकवर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। KW फाइंडर नहीं, फ्लिकवर पे अभी नहीं है वो, एक टूल, एक वेबसाइट है, मुझे अभी नेम याद नहीं आ रहा है, आई विल शेयर इट ग्रुप। तो वहां से आप ग्रुप बाय कर सकते हैं KW फाइंडर का। इट विल हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 600 समथिंग। Okay, so there is a question from Akshay, how can we increase our DA? Okay, so it's basically a detailed topic और मुझे लगता है कि उस पर एक अलग वेबिनार मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि डीए कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। डीए इंक्रीज करने के लिए आपको अपने बैकलिंक्स पर ही वर्क करना पड़ेगा। डोमेन अथॉरिटी मेनली आपको जो आपके बैकलिंक्स हैं उस पर आपको वर्क करना है। आप अच्छा, कमेंट बैकलिंक्स अभी उतने ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, there are different bloggers who allow, different websites who allow guest post। so आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो फ्री गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। और हाँ, ये राहुल has shared this link, you can use this link, free paid guest post। so आप उन वेबसाइट्स के एडमिन को रीच कर सकते हैं और अगर वो अलाउ करते हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिक कंटेंट, है ना, एंड यू कैन क्रिएट बैकलिंक्स फ्रॉम देम। और कोशिश करना है कि जिस भी वेबसाइट पर आप बैकलिंक बना रहे हैं, मतलब जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी कम से कम 20 से तो ऊपर हो, है ना। जितनी ज्यादा उतना अच्छा है। 20 25 के आसपास उसका जो है ये होना चाहिए
पर ट्रैफिक भी उनकी वेबसाइट पर होना चाहिए, तभी आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। Yes, sometime even they listed there's a query from someone else. Sometime even they listed their site, they still ask for money, as we discussed before. Yes, it happens many a times. There are different bloggers who say, who mention that they are taking free guest posts, but they keep asking for money. Yeah, that's quite common. There are different Facebook groups. आप Facebook groups का भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे Facebook groups हैं जिसमें there are members more than 10,000. आप उनको यूज कर सकते हैं। You can personally reach out to people or you can search post where a person is asking for guest post, है ना? तो आपको यूज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट में अगर आपका DA20 है तो easily you can earn around $30 to $40 from one single post। और उसके लिए मेनली क्या होता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर शेयर करते हैं, जैसे ट्विटर पर शेयर करते हैं या क्वोरा पर शेयर करते हैं। गूगल प्लस कभी वर्किंग नहीं है। गूगल प्लस से काफी सारे ऑफर्स गूगल प्लस के थ्रू मेरे पास आते थे। क्वोरा पे आप शेयर कर सकते हैं। ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं, उनके जो SEO पर्सन होते हैं वो आपको रीच आउट करेंगे और आप एक उनको कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। वो आपसे कॉस्ट पूछेंगे और आप उसमें नेगोशिएट भी कर सकते हैं और अपने ब्लॉग की स्टैट्स के अकॉर्डिंग आप उनको जो है अमाउंट बता सकते हैं। अगर आपका DA20 है तो यू कैन इजीली चार्ज 25 to 30 और $40, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट आल्सो। क्लाइंट डिपेंड करता है टीम कैपेसिटी पे। अगर अच्छा ब्रांड है तो दे डोंट हैव एनी इशू इन पेइंग। ओके, सो नेक्स्ट वो करते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट। हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो मेथड है, अच्छा स्पॉन्सर्ड पोस्ट में कि you can yourself reach out to different brands. They have their own official email address. You can find out the email address from their website and you can personally reach out to them, or you can use the social media pages like Facebook page and Twitter pages, and you can talk to their concerned person, basically PR department and all. You can send an email to them, an attractive email to them, and you can share the stats of your blog that you are having this much traffic and your blog is into this particular niche। तो वहां से भी आप जो है उनको खुद रीच आउट कर सकते हैं और एक रेवेन्यू सोर्स जो है जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आ रहा है वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और गेस्ट पोस्ट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली कोई ब्रांड जो होता है वो स्पॉन्सर करता है, जैसे गेमिंग वेबसाइट्स है या गेमिंग कंपनीज है स्पॉन्सर करते हैं। गेस्ट पोस्ट में आप फेसबुक ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं। वहां पर जाके आप जो है काफी सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने ब्लॉग की अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए या SEO पे वर्क करने के लिए गेस्ट पोस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो आप रीच आउट कर सकते हैं उनको। आप अपने वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं एंड दे विल पे यू एन अमाउंट फॉर द सेम। इज स्पॉन्सर्ड पोस्ट इफेक्ट आवर ब्लॉग? हाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है ना, हर टॉपिक पे एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है, तो मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट आपको एक तो शुरू में नहीं करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपने कम आपका DA20 प्लस हो, और दूसरा कि आप पहले अपने ब्लॉग के लिए कुछ बैकलिंक्स बनाओ। जब आपके अच्छे खासे बैकलिंक्स हो जाते हैं, जब आप बैकलिंक्स बना लेते हैं, है ना, वेब 2.0 भी जो आप यूज कर सकते हैं, कमेंट बैकलिंक कर सकते हैं आप यूज। बेसिकली ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग्स जो है .blogspot.com, आप उनका यूज कर सकते हैं और उन पे कमेंट कर सकते हैं अपने फोकस कीवर्ड से। स्पैमिंग ज्यादा नहीं करनी है आपको, मतलब एक लिमिट में आपको कमेंट करना है और कोशिश ये करना है कि अगर आपको एक
एक्टिव ब्लॉग से, एक यूनिक एक्टिव ब्लॉग से अगर एक बैकलिंक मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कमेंट बैकलिंक्स। काफ़ी सारे फॉरम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और ब्लॉगर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्पॉन्सर्ड पोस्ट आपने एक लिमिट में करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो गूगल को, अभी गूगल क्या है, एल्गोरिथम गूगल के चेंज होते रहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गया गूगल। इट विल कम टू नो, गूगल identify that you are doing a lot of sponsored post on your blog and it can penalize you for the same। अभी नहीं तो आगे जाके पेनलाइज कर सकता है, तो इसलिए बेटर यही है कि एक लिमिट में करें, मतलब एक रेशियो मेंटेन करके रखें। मंथली जैसे अगर आप 50 पोस्ट अगर आप अपने ब्लॉग पर डाल रहे हैं मंथली, एक रफ आइडिया, तो 4 to 5 और 6 आप जो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि फिर आपका जो गूगल सर्च है ना वो इससे, तो ये सिर्फ एक एड ऑन मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। I have read that now Google blocks you if you do backlinks। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो बैकलिंक्स के बिना तो आप अपनी अथॉरिटी इंक्रीज कर ही नहीं सकते। आप अपने ये कर सकते हैं कि कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा कैसे बनाना है, आप उसमें इन्फोग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, और आप अट्रैक्टिव बैनर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, और you can also create a YouTube channel or do the video for the same and can embed your YouTube video links into your post। ये भी काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। और बैकलिंक्स आपको जो है बैकलिंक इस तरह से प्लेस करना है, अगर आप बैकलिंक प्रोवाइड भी कर रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट को, तो उसका जो प्लेसमेंट है उसको नेचुरल रखना है, मतलब ये लगना चाहिए कि आपने जो है वो मतलब नेचुरल लगे, क्योंकि नेचुरल होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओवर नहीं करना, उसको एक लिमिट में रखना है आपको बैकलिंक्स को, आप प्रोवाइड करना है। लेकिन शुरू में फोकस ये करना है कि आप पहले खुद की बैकलिंक बनाएं और एक अच्छी खासी अथॉरिटी अपने ब्लॉग की बना लें, उसके बाद फिर आप जो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट या गेस्ट पोस्ट जो है लेना स्टार्ट करें अपने blog पर। तो अच्छा, द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि गेस्ट पोस्ट के लिए कैसे रीच आउट करें। तो मैंने बताया फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे हेलबाउंड ब्लॉगर्स एक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और काफी सारे और ग्रुप्स हैं, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप है, जिसमें आप रीच आउट कर सकते हैं ब्लॉग एडमिन्स को, एंड यू कैन सी इफ दे आर अप्रूविंग गेस्ट पोस्ट। जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है, नेक्स्ट मेथड इज बाय सेलिंग ई बुक्स ऑनलाइन। You can sell your e-books if you are having an expertise in a subject, so you can write an e-book on the topic, and you can share that e-book on your own blog or website। जैसे अगर आप जो है एक इंजीनियर, और if you are a computer engineer and you have good knowledge, so you can create an e-book for the same and can sell the e-book, or initially you can keep the cost like 200 or 300 or 500 depending upon the content you have provided, okay, so Facebook groups, please share names of some FB groups, boy will not take care of them, typing it along bloggers and learn digital marketing। मेरा भी एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा एक लर्न डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप, you can join that too। ओके, हिंदी, ठीक है, हिंदी में कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो, अच्छा ई बुक का मैं दोबारा से एक बार हिंदी में बताया रिक्वेस्ट है। तो ई बुक बेसिकली आप जो भी आपका टॉपिक है या जिस भी चीज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, उसकी ई बुक आप बना सकते हैं और अपने ब्लॉग पर उसको शेयर कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के लिए आपको उसमें पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा, तो पेमेंट गेटवे के लिए एक अलग हम वेबिनार कर लेंगे। बेसिकली इंस्टामोजो आप यूज कर सकते हैं, इंस्टामोजो का जो पेमेंट गेट लगाना है वो काफी इजी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। आप इंस्टामोजो की वेबसाइट पर जाएंगे तो बेसिक सेटअप आपको
जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आप विजेट्स में अपनी ई बुक को ऐड कर सकते हैं या एक रिव्यू लिख सकते हैं या दूसरे ब्लॉग्स को भी रीच आउट कर सकते हैं और वहां पर अपनी ई बुक्स सेल कर सकते हैं। Amazon पे भी सेल कर सकते हैं आप अपनी ई बुक को। अगर आप Amazon पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपनी ई बुक्स को सेल सकते हैं। You can earn from that. Yes, these are FB groups. Learn digital marketing, hellbound bloggers, all these are FB groups. तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ई बुक एक अच्छा मेथड है अर्निंग के लिए। लास्ट टॉपिक जो आ रहा है, लास्ट मेथड जो आप यूज कर सकते हैं, अगर ब्लॉगिंग के अलावा आप जो है आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यू आर क्लोथिंग इंडस्ट्री और यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी अगर आपका अपना प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, जैसे आप एक टीचर हैं और एजुकेशन के ऊपर अगर आपने एक ब्लॉग बनाया है, तो आप अपनी खुद की ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जिस भी चीज में आपकी एक्सपर्टीज है या आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको आप सेल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। उससे भी एक काफी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वही चीजें इन सबसे अर्न करने के लिए सबसे मेन चीज रहती है ट्रैफिक। You can sell health equipments on your website. You can write a genuine review for the same. आप रिव्यू लिख सकते हैं, डिटेल रिव्यू लिख सकते हैं, और रिव्यू जब आपका वो रैंक करेगा गूगल में, तो उस पर ट्रैफिक आएगा एंड देन इट विल लीड टू सेल्स। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, अगर हम एज्यूम करते हैं कि मंथली यू आर रिसीविंग ट्रैफिक ऑफ 30,000, तो चांसेस होंगे 30,000 में से अगर 100 और 200 लोग भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, सो यू कैन मेक अ गुड अर्निंग फ्रॉम दैट। तो यही सब मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं ब्लॉग से अर्न करने के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो यू कैन आस्क। Can I ask a question, please? Yeah. Can I ask Deepak? Can I ask a question? Yeah, sure. Hello. Yeah. You can ask. Okay, Deepak. So I have a magazine which is a lifestyle magazine for women. Okay. So I'm covering all the important areas of women's life. Okay. So I want to ask you. I was just thinking, is it a good idea to add a e-shop tab on the magazine, and then who are there in my network, people in the network sell their products there? Is it a good idea? Okay, so आपकी जो मैगजीन है, is it based on WordPress? Yes, it is. E-magazine basically kind of Yeah. blog, right? Okay. Yes, it's a women's blog. Yeah, women's magazine. Yes, it will be a very good option. You can sell different kind of products which are related to the fashion industry. You can sell different cosmetic products and basically clothing and all. Everything which is related to your field, you can sell them. You can set Okay, up a so payment gateway. Yeah. Okay, so I can create a separate tab, right? E-shop kind of thing, e-shop, and then I can connect it to the cart, right? Yes, you I can can do create some. a shop page. WooCommerce. If you are aware with WooCommerce, are you aware Yes. with WooCommerce? Yes, I am. Okay, so you can. Okay. So you can use WooCommerce, Okay. and you can install WooCommerce on your blog itself, and Okay. you can create a shop page, a separate page with the name shop. It will be Yeah. visible in the header area. Okay, Yeah. so when someone clicks on the shop area, he or she will be redirected to a page where they will see all the products which you are selling, Okay. and it will be in kind of blocks. Like मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. Yeah, please. Like this. So this is Like, are you sharing the screen? Yeah. Is my screen visible to you? No, no. No.
Okay, just a moment. I hope it is visible now. Yeah. Okay, so this is our e-commerce business and this is the e-commerce website with the name commerce. तो ये Okay. हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम प्रोडक्ट्स करते हैं अपने खुद के। Amazon Okay. भी हमारा स्टोर है और ये हमारा इंडिविजुअल स्टोर है। तो Okay. इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये Okay. जो आपको दिख रहा है शॉप पेज, ये तो हमारा हाँ. एक कंप्लीट ही वेबसाइट ही e-commerce की है। ब्लॉग पे हाँ. इस तरह से पेज बन जाएगा आपका शॉप का। शॉप हाँ. पर जब कोई क्लिक करेगा हाँ. तो तभी उसको प्रोडक्ट दिखेंगे, नहीं तो फिर आपकी मैगजीन दिखेगी। जब कोई आपके होम पेज पे आता है तो उसको मैगजीन दिखेगी, नहीं तो फिर हाँ. अगर कोई क्लिक करता है शॉप के पेज तो वो डायरेक्ट होगा शॉप पेज पर जहाँ पे आपके प्रोडक्ट होंगे। इस तरह से Okay. लिस्ट में आ जाएंगी। ये Okay. इनकी पिक्चर्स है, इमेजेस हैं। WooCommerce काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक So it's आपको based on प्रोडक्ट जो है WooCommerce. वो ये खोल के WooCommerce दिखाएगा। पे है? This is on WooCommerce? हाँ, ये WooCommerce पे है। Yeah, Okay. it's on Okay. WooCommerce. And is it a free And platform, for free payment plugin? basis, you can use. Yeah, it's free. It's totally free. And if you want premium thing on WooCommerce, then you need to pay. लेकिन Okay. free वाला जो है, it is quite sufficient. It is quite Okay. sufficient for a basic business. Okay. अब इसमें आप ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं COD और प्री पेमेंट। इस तरह से आप जो है ऐड कर सकते हैं। ये गैलरी इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। Yeah, it's very nice. ये It's very description nice. होगी। Yeah. Interesting. So इसमें like different brands connect करके अब जो भी अपने नेटवर्क में है sellers और जिनका product owners, we can connect with them and we can sell. मैन्युफैक्चरर्स को आप रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आप यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू आप काफी सारे डीलर्स को रीच आउट कर सकते हैं और फिर margin and after that you can place the product on your own blog or your website. Oh yeah, thank you so much. Okay. Another query from other member? Rahul? Hi Deepak. Yeah. Is my voice still echoable? Is it still echoing? Yeah, your voice is echoing. Hello? Are you using the headphone? I used to, so I actually disconnected it. Okay. No issue. So any other query? So is there any other query from any other participant? दीपक, एक क्वेरी है। हाँ, ये WooCommerce में हम कैसे ये e-commerce वेबसाइट बना रहे हैं? अच्छा। WooCommerce अगर जो शो है कर सकते हो जैसे तो आप अच्छा ठीक है, मैं एक बार आपको मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। WooCommerce बेसिकली जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे ना, होस्टिंग आप परचेज करते हो और एक डोमेन नेम आप लेते हो और उसके बाद जो बैकएंड प्रोसेस है, मतलब वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करते हो। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही प्लगइन एरिया में जाओगे ना, एक सेकंड में आपको